Hello students, this is Priyanka Arora welcoming you all to the virtual classroom of mathematics. So students, as you all know that I have already explained you all the properties related to cubes and cubes root. So today in this video I will be explaining you the questions related to chapter number 3 cubes and cubes root, and today let us begin with exercise 3.1. So students, question number 1 of exercise 3.1 is check whether the following numbers are perfect cubes or not. Some numbers are given in this particular question and we have to find it out that they are perfect cube numbers or not. Same kind of questions we have done in chapter number 2 squares and square roots also, where such numbers were given and there we have calculated that the given numbers were perfect square numbers or not. So there also we have calculated firstly the prime factorization of the given number, and in this particular question also we will find the prime factorization of the given number. So first of all, in first part the number which is given is 675. So we have to just check that this number is a perfect cube number or not. So as I told, we will find the prime factorization. So see, I have put this 675 inside the format of the prime factorization, and this number is divisible by the table of 3. So outside the format I have placed number 3. So see, in the table of 3 6 comes 2 times, again in the table of 3 7 doesn't come, 6 comes 2 times, 1 carry over 15 and 3 5s are 15. Then 225 is again divisible by 3. So outside the format I have placed 3. 3 7s are 21 because 22 is not divisible by 3. 1 will be carry over, so it will become 15 and 3 5s are 15. Now the next number is 75. This 75 is again divisible by the table of 3. How? See, in the table of 3, 7 doesn't come. Smaller than 7 is 6, 2 times. So 3 2s are 6, 1 carry over, 5 will become 15. So 15 comes 5 times. So here will come 25. Now 25 is directly divisible by the table of 5. So outside the format I have placed 5. And in the table of 5, 25 comes 5 times, and 5 is again divisible by the table of 5. So 5 ones are 5. After doing the prime factorization, you can see that what we have got 3 into 3 into 3 into 5 into 5. In square and square root, students, I have told when the number forms the pair, then the given number is a perfect square number. And in cube root, what happens when the number forms a group, और group कब बनता है जब 3 numbers होते हैं. आप ध्यान रखेंगे कि square roots की अगर बात होती है तो वहां पर यूज किया जाता है पेयर्स, ठीक है, और क्यूब रूट्स की अगर बात होती है तो वहां पर यूज में लिया जाता है ग्रुप्स, और ग्रुप के अंदर आते हैं 3 नंबर्स. ओके, if we are talking about group, then 3 numbers will be there, and if we talk about pairs, then pair contains 2 numbers. Fine. So here see, number 3 is in group. number 3 का ग्रुप फ्रेम हो रहा है यहाँ पे क्योंकि number 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. 3 नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे नंबर 3 में, बट जो नंबर 5 है वो ओनली 2 टाइम्स आ रहा है, वो पेयर में आ रहा है, वो ग्रुप में नहीं आ रहा. सो हियर फैक्टर 5 इज नॉट इन अ ग्रुप, क्योंकि फैक्टर 5 ग्रुप में नहीं है. सो दैट मीन्स 675 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर. सो 675 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है. सो सेम वे वी हैव टू डू ऑल द पार्ट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Like the next part is 1728. Since the last digit here is 8, so it will be divisible by the table of 2. So outside the format I have placed 2. In the table of 2, 17 doesn't come. Smaller than 17 comes 16 in the table of 2, and it comes 8 times. So 2 8s are 16. 1 will be carry over. So 2 will become 12, and 12 comes 6 times. Then 8 comes 4 times. So 864 will come here. So here I have mentioned 864. Again 864 is divisible by 2. So outside I have mentioned 2. Now how many times it comes in the table of 2? Just see, 2 4s are 8, 2 3s are 6, and 2 2s are 4. So 432 will come in the next step. Again 432 is divisible by 2 because the last digit is 2 here. So outside I have mentioned 2. And how many times it will go? Just see, 2 2s are 4. In the table of 2, 3 doesn't come. Smaller than 3 comes 2, 1 time. So 2 1s are 2. 1 carry over, it will become 12, and 12 comes 6 times. So 216. So here I have mentioned 216. Again 216 is divisible by 2 because the last digit is 6 here. And how many times? 2 1s are 2. And here students, you have to be very careful
after 2 ones are 2, we will be taking two digits together because 1 doesn't come in the table of 2. So we will take two digits, that means 16 together. And whenever we take two digits together from between, then we place one 0 there. So यहाँ पर आप पहले एक 0 लगाएंगे and then 16 comes how many times? It comes 8 times. So we'll mention 8. So 108 will come here. Again 108 is divisible by 2. So outside will come 2. And how many times? 2 5s are 10 and 2 4s are 8. Now see students, in the beginning we can take two digits together. अगर आप beginning में ले रहे हैं numbers, जैसे यहाँ पे हमने middle में से लिए थे दो नंबर, तो हमने एक 0 को place किया. बट बिगनिंग में अगर हम दो नंबर्स लेते हैं तो वहां पे 0 को मेंशन करने की नीड नहीं रहती. वहां पे आप डायरेक्ट जो भी नंबर आ रहा है वो आप प्लेस कर सकते हैं. Now 54 is having 4 at the last, which is again divisible by the table of 2. So 2 2s are 4, 1 carry over 14, so 2 7s are 14. Now 27 is directly divisible by the table of 3, and in the table of 3 27 comes 9 times. Then 9 is again divisible by the table of 3, 3 3s are 9, and then finally 3 is divisible by the table of 3, so 3 1s are 3. So like this we will do the prime factorization, and after prime factorization of 1728, what we got? We got 2 into 2 into 2, which is forming a group here. इन तीनों 2 का एक ग्रुप बन गया है. यहाँ पर 3 नंबर्स आ गए हैं. Again 2 into 2 into 2, which is again forming a group, and then we got 3 into 3 into 3, which is again forming a group. So here all the factors are forming group. So this number, that means 1728 is a perfect cube number. हमें सिर्फ यही देखना है इसके अंदर स्टूडेंट्स कि ये perfect cube number है या नहीं है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो भी फैक्टर्स आपके पास में आ रहे हैं, अगर उसके ग्रुप बन रहे हैं, 3 नंबर्स का ग्रुप बन रहा है, तो गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, और अगर ग्रुप नहीं बन रहा तो गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा. नाउ सी द नेक्स्ट नंबर व्हिच इज हियर इज 157464. So let us find out the prime factorization of this number 157464. Since this number is also having 4 at the last, so it will be divisible by the table of 2. So in the beginning we will take two numbers. 15 is not divisible by 2, so smaller than 15 comes 14, and it comes 7 times. So 2 7s are 14, 1 carry over, this 7 will become 17, 17 doesn't come, smaller than 17 comes 16, it comes 8 times, so 2 8s are 16, 1 carry over 14, it comes 7 times, then 6, 2 3s are 6 and 2 2s are 4. Again last digit is 2, so it will be divisible by 2 only. 2 3s are 6, 1 carry over, this 8 will become 18, so 2 9s are 18, 7 is not divisible by 2, 6 comes in the table of 2, so 2 3s are 6, 1 carry over 13, 13 is not divisible, but 12 is divisible, and 12 comes 6 times, so 2 6 are 12, again 1 carry over 12, so 2 6 are 12. Now again the last digit is 6, so it will be divisible by 2 only. 2 1s are 2, 1 carry over, this 9 will become 19, 2 9s are 18, 1 carry over, this 3 will become 13, so 2 6 are 12, then 1 carry over 16, so 2 8s are 16 and 2 3s are 6. Now see, the last digit here is 3 now, which is not divisible by the table of 2. So then we will check the next prime number, which is 3. So let us check that this number is divisible by the table of 3 or not. And to check the divisibility of 3, what we do? We just add the digits of this number. So 1 plus 9 plus 6 plus 8 plus 3. Just add it. So 9 plus 1 is 10. 10 plus 8 is 18. 18 plus 3 is 21. And 21 plus 6 is 27. So the result of the addition is 27. So here 27 is divisible by the table of 3. That means this particular number is divisible by 3. So after this step, this number will be divisible by the table of 3. Okay students? So see now. In the table of 3, 19 doesn't come, smaller than 19 is 18. 3 6 are 18, 1 carry over 16, 3 5s are 15, 1 carry over 18, 3 6 are 18 and 3 1s are 3. Again it will be divisible by the table of 3 because you can check it 6 5 6 1. Add all the digits. After adding you will get 18 as the result. So 18 is divisible by the table of 3. So again we will divide this number by 3. So 3 2s are 6. Then 3 1s are 3.
2 carry over 26. 26 doesn't come, but 24 comes 8 times. So 3 8s are 24, 2 carry over 21, so 3 7s are 21. Here I am doing the direct solution. If you are not that much capable of doing the direct solution, you can do the division also here. Now 2187. 2187 is again divisible by the table of 3 because 8 plus 2 is 10, 10 plus 7 is 17 and 17 plus 1 is 18, which is divisible by 3. So again we will divide this number by 3, or we can do it directly. So 3 7s are 21, then 3 2s are 6, 2 carry over 27, so 3 9s are 27. Again 729 is divisible by the table of 3, so 3 2s are 6, 1 carry over 12, so 3 4s are 12 and 3 3s are 9. Again this number is divisible by the table of 3, 3 8s are 24 and 3 1s are 3. Again by the table of 3, 3 2s are 6 and 3 7s are 21, then 3 9s are 27, then 3 3s are 9, and then finally 3 1s are 3. So here we have done our prime factorization. So after doing the prime factorization, these are the factors which we have got outside the format. So we got the group of 2, then we got the group of 3, again we got the group of 3, and finally again we got the group of 3. So here all the factors are forming a group. So that means this particular number is a perfect cube number. 157464 is a perfect cube number. I hope students this is clear to you all. So now let us move on to the next part, which is part D, 2197. Now 2197 is a cube of 13. 2197 is directly divisible by the table of 13. Okay, आप कोई और प्राइम नंबर से चेक करोगे, जैसा कि मैंने बताया ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम सिर्फ प्राइम नंबर्स से ही चेक करते हैं. तो जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उसी को यूज में लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं. तो ये 2197, 2, 3, 5, 7, 11 इन सब नंबर से जब आप चेक करेंगे तो इन सारी नंबर से डिविजिबल नहीं होता, ये डिविजिबल होता है डायरेक्टली 13 से, क्योंकि ये 13 का क्यूब है. 13 इंटू 13 इंटू 13 गिव्स अस 2197. तो जब आप इसको 13 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 169, और 169 आपको पता है स्क्वायर रूट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि 13 का स्क्वायर होता है 169. सो 13 13s are 169 एंड 13 1s are 13. सो दैट मीन्स इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 13 13 13 एंड 13 इज फ्रेमिंग अ ग्रुप. यहाँ पे 13 का भी ग्रुप बन रहा है, आप देख सकते हो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और क्योंकि नंबर 13 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है दैट मीन्स दिस 2197 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर. 2197 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ E part is 4096. Now let us solve this particular part 4096. Since the last digit is 6 here, so we will do it by the table of 2 only. 2 2s are 4, 0, 2 4s are 8 and 2 8s are 16. Again by the table of 2, 2 1s are 2, 0, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Again by the table of 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Again by the table of 2, 2 2s are 4, 1 carry over 11, 2 5s are 10, 1 carry over 12, so 2 6 are 12. 256 again by the table of 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 8s are 16. Remember, I told you if you are not comfortable doing it directly, then you can divide this particular number by 2. Okay, but don't make mistake. अगर आपने division में direct calculation में mistake कर दी, आपका prime factorization अगर गलत आया तो आपका आंसर भी गलत आएगा. So be very particular when you are doing this prime factorization. So here again we will be doing it by the table of 2, 2 6 are 12 and 2 4s are 8. Then again by the table of 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4. Then again by the table of 2, 2 1s are 2, 2 6 are 12. Then 2 8s are 16, 2 4s are 8. Then 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So after 4 also it will go by the table of 2 only. Fine. So complete 4096 was divisible by 2 only. Now we will check the groups. So we got all the 2's. So first 2 is forming a group. You can see that 3 2's are there. Again the second 2 is forming a group. 3 2's are there. Third 2 is also forming a group, and fourth 2 is also forming a group. So all the factors which we have got here are 2 only, and all the 2's are forming a
group. Since all the 2's are forming the group, so this 4096 is a perfect cube number. क्योंकि सारे ही 2's का group बना है यहाँ पर 3 numbers का, तो ये जो number है एक perfect cube number है. Okay students? Now pay attention on the next number, which is 6859. So this is your next number, and this number is directly divisible by the table of 19. इसको भी जब आप प्राइम नंबर से स्टूडेंट्स चेक करेंगे, तो जब आप 1 by 1 प्राइम नंबर से चेक करेंगे, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, इन सारे ही नंबर से ये पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ये डायरेक्टली डिविजिबल होगा 19 की टेबल से. तो आपको ध्यान रखना है ये 19 का क्यूब है, और जब आप इस नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 361, और 361 19 का स्क्वायर होता है, तो 19 की टेबल में 19 टाइम्स ही आता है 361, एंड 19 की टेबल में 19 आता है 1 टाइम. तो इसके जब आप फैक्टर्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर 19 मिल रहा है 3 टाइम्स, और इस 19 का ग्रुप बन रहा है 3 टाइम्स, हमें नंबर 19 मिल रहा है. दैट मीन्स ये जो नंबर है 6859, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है. फाइन. नाउ the next part is 526. 526 की लास्ट डिजिट स्टूडेंट 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा. 2 2s are 4, 2 6s are 12, and 2 3s are 6. Now this 263 is a prime number. 263 एक प्राइम नंबर है, ये और किसी भी टेबल में नहीं आएगा, ये डायरेक्टली 263 की टेबल से ही डिविजिबल होगा. ओके, आप किसी भी प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 2 से, 3 से, 5 से, 7, 11, 13, 17, 19, 23, आप कोई भी प्राइम नंबर देख लीजिए, लेकिन 263 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये सिर्फ 263 से ही डिविजिबल होगा. तो इसके जब आप फैक्टर्स देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 and 263, दो ही फैक्टर्स इसके मिलेंगे. अब यहाँ पे ना तो नंबर 2 ग्रुप में आ रहा है, ना 263 ग्रुप में आ रहा है, ना ही नंबर 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ना ही 263 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर्स ग्रुप नहीं फ्रेम कर रहे हैं. दैट मीन्स ये जो नंबर है 526, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है. ओके, now we are on the last part of this particular question, and the last part is 999. This number is divisible by the table of 3. ये 2 से divisible नहीं होता, और 3 की टेबल में आता है ये 333 times, because 3 3s are 9, 3 3s are 9, and 3 3s are 9. Again this number is divisible by the table of 3. 3 1s are 3, 3 1s are 3, and 3 1s are 3. Again it is divisible by the table of 3. 3 3s are 9, 2 carry over, so it will become 21. So 3 7s are 21, and as you all know 37 is a prime number, so it will be divisible by the table of 37 only. So 37 1s are 37. So after finding the factors, you can see students that number 3 is forming a group. Number 3 का group बन रहा है, but number 37 is not forming a group. Number 37 only 1 time repeat हो रहा है, और group बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि particular number 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. अब क्योंकि यहाँ पे नंबर 37 3 टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा है, इट इज नॉट फॉर्मिंग अ ग्रुप. दैट मीन्स दिस 999 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, which is quite a simple question. Here you have to find the cube of the given numbers. Whatever numbers are given, you have to find its cube. And to find the cube, what you have to do, you have to just multiply the number 3 times. जो भी number है आप उसको 3 times multiply करिए, आपको cube मिल जाएगा. तो यहाँ पे आपको 5 का cube निकालना है, तो करिए 5 into 5 into 5, you will get 125. In the next part, you have to find the cube of 1.1. So you have to multiply 1.1 into 1.1 into 1.1. So here, firstly, for doing the multiplication, you remove the decimal. आप decimal को पहले remove करके multiplication करिए. तो 1.1 में से जब आप decimal को remove करेंगे तो वो हो जाएगा 11. So 11 into 11 into 11. तो 11 का cube होता है students 1331. जब आप 11 को 3 times multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 1331. अब हमें लगाना है डेसिमल. तो देखिए डेसिमल तीनों 11 में 1 1 डिजिट के पहले था, ठीक है. तो अगर आप इन 1 1 1 को प्लस करें तो टोटल आपके पास में आएगा 3. तो दैट मीन्स आंसर में जो आप डेसिमल प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, वो बैक साइड से 3 डिजिट के पहले आएगा. तो यहाँ पे जब आप बैक साइड से 3 डिजिट काउंट करेंगे
तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो डेसिमल की प्लेसमेंट यहाँ आएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.331. So remember, when decimal is there in the question, so firstly you remove the decimal, do the multiplication, and after doing the multiplication you place the decimal again. Then in C part we have to find the cube of 0, so it is quite simple, 0 into 0 into 0 is equals to 0 only. Then in D part we have to find the cube of 100. So for finding the cube of 100, it is again simple. What you have to do, you have to simply remove the 0. आप zeros को remove करके students पहले सिर्फ 1 को multiply कर लीजिए. So 1 into 1 into 1 क्या होता है? 1 होता है. 1 को जब हम 1 से multiply करते हैं तो 1 ही आता है. अब आप zeros count कर लीजिए. Total कितने zeros आपने पहले remove किए थे? So 2, 4, 6 zeros आपने remove किए थे, तो बस अब आप 6 zeros को प्लेस कर दीजिए. सो सिंपली ये हो गया आपका आंसर. तो अगर जीरोस आ जाते हैं तो पहले आप जीरोस को रिमूव करके मल्टीप्लाई करिए और फिर बाद में आप जीरो को प्लेस कर सकते हैं. यहाँ पे हमें 6 का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो 6 का क्यूब निकालने के लिए आप 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 6 into 6 into 6 is equals to 216. देन 101 का आपको यहाँ पे क्यूब फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि आप यहाँ से जीरो को हटा दें. कभी भी जीरो अगर सेंटर में है तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते. अगर ये जीरो लास्ट में होता तो हम उसको रिमूव करके आंसर कैलकुलेट कर सकते थे, बट अभी जो जीरो है वो सेंटर में है, ये 101 है. ओके, ये 110 होता तो हम जीरो हटा देते, बट 101 में जीरो सेंटर में है तो ये जीरो यहाँ से रिमूव नहीं होगा. आपको 101 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. 101 को पहले 101 से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप वापस 101 से मल्टीप्लाई करिए. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग you will get the answer as 1030301. Okay, so that was part F. Now pay attention on G part. Part G is given in mixed fraction. So first of all you have to convert this mixed fraction into an improper fraction. और इसको जब आप improper fraction में convert करेंगे, आप इस denominator 3 को सेंटर जो नंबर है 1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 1 3 प्लस 2, न्यूमरेटर को आप उसके अंदर ऐड कर देंगे. देखिए पहले 3 को आप सेंटर वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा उसमें आप न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे. सो 3 1 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास में 5 और डिनोमिनेटर में वही वैल्यू रहेगी जो कि गिवन थी. तो डिनोमिनेटर में 3 था तो यहाँ पर 3 का 3 ही रहेगा. तो हमें मिल गया 5/3 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इसका क्यूब निकालने के लिए आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर 3 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 into 5 into 5 is 125 and 3 into 3 into 3 is equals to 27. अब क्योंकि हमें क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था तो हम इसका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन के अंदर ही कैलकुलेट करेंगे. तो आप 125 को 27 से डिवाइड करिए. डिवाइड करने के बाद में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो आपका सेंटर वैल्यू हो जाएगी. जो रिमाइंडर बचेगा वो आ जाएगा न्यूमरेटर, और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो यानी 27 से, तो वो डिनोमिनेटर में ही प्लेस करोगे. ओके, वैसे दोनों ही आंसर करेक्ट है. अगर आप 125/27 लिखते हो वो भी करेक्ट है, और मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसको कन्वर्ट करके लिखते हो तो वो भी करेक्ट है. मिक्स फ्रैक्शन में हमने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन भी हमें मिक्स फ्रैक्शन के अंदर गिवन था. नाउ एच पार्ट के अंदर देखिए हमें 3.1 का क्यूब निकालना है, तो हम 3.1 को 3 टाइम्स मेंशन करके और मल्टीप्लाई करेंगे. इसमें भी आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप क्या करिए, डेसिमल को पहले रिमूव कर दीजिए और 31 into 31 into 31 करिए. ठीक है, पहले डेसिमल को हटा के मल्टीप्लिकेशन करिए. तो डेसिमल को हटा के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिलेगा 29791. अब आप सिंपली डेसिमल प्लेस करिए. तो देखिए हमारे पास में टोटल डेसिमल 3 डिजिट्स के पहले है 1 2 3. तो यहाँ पर आप 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल को प्लेस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 29.791. Okay, so that is part H, and with this we have completed question number 2. I hope students all the parts are clear. Now pay attention on question number 3. In question number 3 you have to find the smallest number or smallest expression. ध्यान रखें यहाँ पे या तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है या आपको स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है. अब एक्सप्रेशन क्यों बोला जा रहा है वो मैं आपको पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी. By which the following number should be multiplied so that the product is a perfect cube. इस क्वेश्चन में आपको कुछ पार्ट्स गिवन है स्टूडेंट्स, और वो जो भी पार्ट्स गिवन है वो परफेक्ट क्यूब नंबर्स नहीं है. तो आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे जब आप गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा. तो देखिए आपको सबसे पहले गिवन है यहाँ पर ए पार्ट में 2000
2700। तो इसको भी फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले 2700 का लेना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2700 लास्ट में 0 है तो 2 के टेबल से डिविजिबल होगा। 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10 एंड 0। अगेन बाय द टेबल ऑफ 2, 2 6 12, 1 carry over 15, 2 7 14, 1 carry over 10, 2 5 10. 675 is divisible by the table of 3, 3 2 6, 3 2 6 and 3 5 15. Again 225 is divisible by the table of 3, so 3 7 21 and 3 5 15. Then again by the table of 3, 3 2 6 and 3 5 15, then 5 5 25 and 5 1 5. So these are the prime factors which we have got after the प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो नंबर 3 हमें मिला है फैक्टराइजेशन करने के बाद में, उसका तो ग्रुप फॉर्म हो रहा है, बट जो नंबर 2 है उसका ग्रुप नहीं बन रहा और नंबर 5 का ग्रुप नहीं बन रहा, क्योंकि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये पेयर में है। 2 भी पेयर में है और 5 भी पेयर में है। और परफेक्ट क्यूब में मैंने आपको जैसे बताया कि ग्रुप में नंबर्स आने चाहिए हमारे पास, यानी 3 नंबर्स आने चाहिए। सो हियर फैक्टर 2 एंड फैक्टर 5 इज नॉट फॉर्मिंग अ ग्रुप, देयरफॉर वी शुड मल्टीप्लाई 2700 बाय 5 into 2 10 to make it a perfect cube number। तो ये जो 2700 है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ये हमें पता चल गया, क्योंकि नंबर 2 और नंबर 5 का ग्रुप नहीं बन रहा। तो अगर हमें इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक 2 की नीड और रहेगी और यहाँ पर हमें एक 5 की नीड और रहेगी। अगर एक 2 और 5 हमें मिल जाता है तो ये ग्रुप फ्रेम कर लेगा और उसके बाद में ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो आपको इस नंबर को एक जो 2 रिमेनिंग था उससे मल्टीप्लाई करना होगा और एक जो 5 रिमेनिंग था उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 into 5 is equals to 10। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, 2700 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा फिर वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो यहाँ पे जो 27,000 है वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ओके, 2700 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं था, हमने जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया एक परफेक्ट क्यूब नंबर। फाइन। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज 106480। इसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जैसा कि मैं समझाई चुकी हूँ अब आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको कैसे निकालना है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, और फाइंड आउट करने के बाद में आप देखेंगे कि नंबर 2 का ग्रुप बन रहा है यहाँ पे और नंबर 11 का ग्रुप बन रहा है, बट नंबर 2 और नंबर 5 का यहाँ पे ग्रुप नहीं बन रहा है। नंबर 2 पेयर के अंदर है, 2 टाइम्स की है हमारे पास में, नंबर 2 और नंबर 5 भी हमारे पास में 2 टाइम्स है, यानी पेयर में है, ग्रुप में नहीं है। तो इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक 2 की नीड और है और इधर हमें एक 5 की नीड और है। अगर हमें एक 2 और एक 5 मिल जाता है तो इनका भी ग्रुप बन जाएगा, और अगर इनका ग्रुप बन जाएगा तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। तो एक 2 और एक 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10। तो दैट मीन्स ये जो नंबर है 106480, ये अभी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली इसके बाद में 0 आ जाएगा। हालांकि आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखाना है, ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। आपको सिर्फ वो नंबर फाइंड आउट करना है जिस नंबर से मल्टीप्लाई होकर ये नंबर जो गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो वो क्या नंबर होगा, 10 होगा यहाँ पे, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जब गिवन नंबर से तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। अब देखिए सी पार्ट के अंदर है हमारे पास में 392, तो इसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद में ये आपको फैक्टर्स मिलेंगे। तो देखिए फैक्टर्स के अंदर नंबर 2 का तो ग्रुप बन रहा है बट नंबर 7 का यहाँ पे ग्रुप नहीं बन रहा, ठीक है। नंबर 7 सिर्फ पेयर में है, ग्रुप में नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक 7 की नीड और है। अगर हमें एक 7 और मिल जाएगा तो जो 7 है उसका भी ग्रुप बन जाएगा। तो दैट मीन्स हमें 392 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, तो हम 392 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। तो बेसिकली आपको वही नंबर फाइंड आउट करना है जिससे आपको गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। तो यहाँ पर 7 का ग्रुप नहीं बन रहा था तो हम 7 से ही इसको
मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने आपको क्वेश्चन की बिगनिंग में बताया था स्टूडेंट्स कि हमें पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन, देखिए हमें पूछा गया था स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन। तो पार्ट ए बी सी में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से नंबर फाइंड आउट करना है। एक्सप्रेशन वर्ड क्यों यहाँ पे यूज में लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज है वो देखिए एल्जेब्रा के फॉर्म में गिवन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में गिवन है, इसलिए वहां पे एक्सप्रेशन गिवन है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर पावर्स गिवन है उतने टाइम्स आप इस एक्सप्रेशन को ओपन करिए। जैसे पी स्क्वायर गिवन है तो आप पी इंटू पी लिखेंगे 2 टाइम्स। उसके बाद में क्यू क्यूब गिवन है, क्यूब यानी पावर 3, तो क्यू को आप 3 टाइम्स ओपन करेंगे। एंड देन हमें गिवन है लेटर आर, और लेटर आर ओनली 1 टाइम गिवन है। तो जब आपने इसको ओपन किया तो आप देखिए यहाँ पर Q का जो है वो ग्रुप बन रहा है, बट P का सिर्फ पेयर है और R ओनली सिंगल है। इसका पेयर भी नहीं है, इसका ग्रुप भी नहीं है, और P का ओनली पेयर है, ग्रुप नहीं है। तो इसको ग्रुप में बनाने के लिए अगर इस P को हमें ग्रुप के अंदर चेंज करना हो तो हमें एक P की नीड यहाँ पर और रहेगी, और इस R को अगर हमें ग्रुप में चेंज करना है तो यहाँ पे हमें 2 टाइम्स R की नीड और रहेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या लेस है, किसका ग्रुप नहीं बन रहा, तो यहाँ पे 1 टाइम P एंड 2 टाइम R का ग्रुप नहीं बन रहा है। सी हियर फैक्टर P एंड R आर नॉट फॉर्मिंग अ ग्रुप, सो वी शुड मल्टीप्लाई P स्क्वायर क्यू क्यूब R। तो इस P स्क्वायर क्यू क्यूब R को आपको परफेक्ट क्यूब एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 1 टाइम P से एंड 2 टाइम्स R से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे P R स्क्वायर से to make it a perfect cube number. Okay, I hope it is clear. Now, pay attention on next part which is part E, 2560. इसका भी आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद में आप देखेंगे कि फर्स्ट 2 का ग्रुप बन रहा है, सेकंड 2 का भी ग्रुप बन रहा है और थर्ड 2 का भी ग्रुप बन रहा है, बट यहाँ पे जो नंबर 5 है वो सिंगल आ रहा है, नंबर 5 का ग्रुप नहीं बन रहा। तो इस नंबर को हम परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि नंबर 5 का ग्रुप नहीं बन रहा है। तो इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 टाइम्स नंबर 5 की नीड और रहेगी, तभी ये परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। 2 टाइम्स नंबर 5 यानी कि 5 इंटू 5, तो जब आप 5 इंटू 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 25। तो दैट मीन्स ये जो नंबर है 2560, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। तो देखिए therefore we should multiply 2560 by 5 into 5 25 to make it a perfect cube number. Okay students, now pay attention on F part which is 219700। इसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास में सिर्फ नंबर 13 का ग्रुप बन रहा है और नंबर 2 और नंबर 5 का ग्रुप नहीं बन रहा। नंबर 2 और नंबर 5 दोनों ही पेयर में आ रहे हैं। तो क्या है हमारे पास में यहाँ पर लेस, जिसका ग्रुप नहीं बन रहा, तो एक तो 2 हमारे पास में लेस है यहाँ पर और एक 5 यहाँ पर लेस है। ठीक है, तो दोनों ही नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 into 5 is equals to 10। दैट मीन्स ये जो नंबर है अभी 219700, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। देखिए therefore we should multiply 2 into 5, जो भी कम पड़ रहा था हमें नंबर यहाँ पे 2 का ग्रुप और 5 का ग्रुप नहीं बन रहा था, तो हम इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। ओके, नाउ पार्ट जी। पार्ट जी के अंदर गिवन है हमें 5184। तो यहाँ पर जब आप 5184 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स तो देखेंगे 2 का ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, अगेन सेकेंड टाइम 2 का ग्रुप बन रहा है और 3 का ग्रुप बन रहा है। किस नंबर का ग्रुप नहीं बन रहा, नंबर 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। नंबर 3 ओनली 1 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर हमें 2 टाइम्स नंबर 3 की और नीड रहेगी, तब ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो हमने कौन से नंबर एक्स्ट्रा लिए हैं यहाँ पे, 2 टाइम्स 3 एक्स्ट्रा लिया है, सो 3 into 3 is equals to 9। तो दैट मीन्स ये जो नंबर है 5184 ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए हमें 5184 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सिंपल है, जिस नंबर का ग्रुप नहीं बनता बस उसी नंबर से आपको क्या करना होगा, गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ लास्ट पार्ट है एच पार्ट। इसके अंदर एक्सप्रेशन गिवन है 27a क्यूब b। तो इसमें जो नंबर है उसका तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। ओके, 3 into 3 into 3 हो जाएगा 27, और एक्सप्रेशन देखिए a क्यूब b है, तो आप क्या करेंगे, a को आप 3 टाइम्स ओपन करेंगे और b को ओनली
1 टाइम ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे, क्योंकि b के ऊपर कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स पावर 1। इसके बाद में जब आप चेक करेंगे तो देखिए 3 का ग्रुप बन रहा है यहाँ पर, a का भी ग्रुप बन रहा है यहाँ पर, ओके। बट जो लेटर b है उसका ग्रुप नहीं बन रहा, लेटर b आ रहा है हमारे पास में ओनली 1 टाइम। तो दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्टेड नहीं है। इसको परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर नंबर को 2 टाइम्स b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो b को जब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा b स्क्वायर। तो इसको आपको परफेक्ट क्यूब नंबर में कन्वर्ट करने के लिए b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सी देयरफॉर वी शुड मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय b स्क्वायर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, ओके स्टूडेंट्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज जस्ट ऑपोजिट टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था जिससे कि हमें मल्टीप्लाई करना था गिवन नंबर को। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होगा जिससे कि आप गिवन नंबर को डिवाइड करें और वो जो नंबर है फिर वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, ओके। उसमें मल्टीप्लिकेशन था, इसमें सिंपल डिवीजन है। तो उस केस में भी आपको क्या करना होगा, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको लेना ही होगा। लाइक ए पार्ट के अंदर है 256, तो ये जो 256 है ये अभी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद में फैक्टर्स देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 का ग्रुप बन रहा है, सेकंड 2 का भी ग्रुप बन रहा है, और जो आगे की तरफ जो 2 2 आ रहे हैं वो पेयर में आ रहे हैं, वो ग्रुप में नहीं आ रहे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे थे कि जो नंबर कम पड़ रहा था उसको हम ऐड कर रहे थे। डिवीजन में हम क्या करेंगे कि जो नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं उसको हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो 2 2 है इसका ग्रुप नहीं बन रहा, तो जिसका ग्रुप नहीं बन रहा उसको हम हटा ही देंगे यहाँ से। तो 2 into 2 is equals to 4, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर नंबर को यानी 256 को हमें डिवाइड करना होगा 4 से टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिवीजन। सो देखिए जो एक्स्ट्रा नंबर पढ़ रहे हैं उसको आप रिमूव करिए। तो रिमूव करने के लिए 2 into 2 एक्स्ट्रा है, उसको मल्टीप्लाई करिए 4। So 256 will be divided by 4 to make it a perfect cube number. Okay, so that was A part and similarly we have to do the remaining parts. B part के अंदर है हमारे पास में 8640। 8640 का भी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद में 2 का ग्रुप बन रहा है, अगेन 2 का ग्रुप बन रहा है और 3 का ग्रुप बन रहा है। जो नंबर 5 है उसका ग्रुप नहीं बन रहा, ये नंबर 5 अलोन है। तो दैट मीन्स जिसका ग्रुप नहीं बन रहा उसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो 8640 ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए जिस नंबर का ग्रुप नहीं बन रहा उसको हम हटा देंगे, यानी कि इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से। Therefore, we should divide 8640 by 5 to make it a perfect cube number. So that was part B. Similarly, pay attention on part C. पार्ट सी का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर 7 जो है इसका ग्रुप बन रहा है बट नंबर 2 अलोन है, नंबर 2 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, ओके। तो जिस नंबर का ग्रुप नहीं बन रहा उसको हम रिमूव कर देंगे, उसको हम हटा देंगे डिवीजन के केस में। तो 686 को आप डिवाइड कर देंगे इस नंबर 2 से टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, ओके। वी शुड डिवाइड 686 by 2 to make it a perfect cube number. नेक्स्ट है हमारे पास में 1701। 1701 का भी आप करिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद में आप देखिए नंबर 3 का ग्रुप बन रहा है, इसके आगे जो नंबर 3 एक और आ रहा है वो पेयर में आ रहा है, उसका ग्रुप नहीं बन रहा, और नंबर 7 का भी ग्रुप नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो देखिए एक्स्ट्रा नंबर्स मैंने क्या कहा, डिवीजन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा नंबर होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो जिस जिसका ग्रुप नहीं बन रहा उसको आप रिमूव कर दीजिए। तो 3 into 3 into 7 इनका ग्रुप नहीं बन रहा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए। 3 3 is 9 and 9 7 is 63। तो पर्टिकुलर नंबर ये अभी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। 1701 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए आपको जो भी एक्स्ट्रा नंबर्स आ रहे थे हमारे पास में, यानी 63 हमारे पास में एक्स्ट्रा आ रहा था, तो हम 1701 को 63 से डिवाइड कर देंगे इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए। देन ई पार्ट के अंदर हमें एक्सप्रेशन गिवन है a क्यूब b स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे a इंटू a क्योंकि a के ऊपर पावर 3 है, और b स्क्वायर यानी b इंटू b। तो देखिए
A का तो ग्रुप बन रहा है बट यहाँ पर B का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो जिसका ग्रुप नहीं बन रहा उसको रिमूव कर दीजिए। तो B इंटू बी इज इक्वल्स टू B स्क्वायर का यहाँ पर ग्रुप नहीं बन रहा, तो B स्क्वायर से ही हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए। तो देखिए B इंटू बी को हमने रिमूव कर दिया, डिवाइड करेंगे आप तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब देखिए एफ पार्ट के अंदर है हमारे पास में 8788, इसका भी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 13 इंटू 13 इंटू 13। तो यहाँ पे 13 का ग्रुप बन रहा है बट 2 का ग्रुप नहीं बन रहा, तो जिसका ग्रुप नहीं बन रहा उसको हम कर देंगे रिमूव। तो 2 का ग्रुप नहीं बन रहा है, 2 इंटू 2 पेयर में आ रहा है तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। तो दैट मीन्स जो गिवन नंबर है हमारे पास में 8788, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए आपको जो नंबर एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं उसी से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 2 और 2 एक्स्ट्रा है तो उसको रिमूव करेंगे, तो 2 इंटू 2 4, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर में चेंज करने के लिए। अब देखिए पार्ट जी, इट इज 64 a raised to the power 5, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। 64 का तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे सेपरेटली और a5 को हम ओपन कर देंगे a raised to the power 5। तो देखिए 64 का जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया तो यहाँ पे 2 के 2 ग्रुप्स बन रहे हैं हमारे पास में, और a raised to the power 5 को जब हमने ओपन किया यानी a को जब हमने 5 टाइम्स ओपन करके लिखा तो एक a का तो यहाँ पे ग्रुप बन रहा है लेकिन दूसरे a का यहाँ पे ग्रुप नहीं बन रहा, दूसरे a का ओनली यहाँ पे पेयर बन रहा है। तो एक्स्ट्रा क्या पड़ा हमारे पास में यहाँ पे, हमें यहाँ पे 2 टाइम्स a जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा, तो 2 टाइम्स a यानी कि a इंटू a, और a इंटू a आप करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर। तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को परफेक्ट क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना होगा a स्क्वायर से, तो ये फिर एक परफेक्ट क्यूब एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज 9x क्यूब। सो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 इंटू 3, और x क्यूब है तो x को आप 3 टाइम्स ओपन करेंगे, x इंटू x। तो देखिए x का तो यहाँ पर ग्रुप बन रहा है बट जो नंबर 3 है उसका यहाँ पे ग्रुप नहीं बन रहा, नंबर 3 पेयर में आ रहा है। तो अब जिसका ग्रुप नहीं बन रहा उसी को हम रिमूव करेंगे, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। सो दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बाय 9 टू मेक इट एज अ परफेक्ट क्यूब expression. Okay, so like this you have to do question number 1 to question number 4 of exercise 3.1. I hope students all these questions are clear to you. For understanding it more easily, I just suggest you to do the practice by yourself of all the question, then you will understand it in a better way. Fine. So just do practice, and if any problem related to any question, you can ask me in the live class. Fine students. So that's all for this video, and I'll see you back in my next video where I will be explaining you the remaining questions of this particular exercise. So meet you all in my next video. Till then, do take good care of yourself students. Thank you so much.